اے خداوند فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تیرے پاس ہیں۔ ہالےلویا، 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 ہالےلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کے پہلے باب کی 35ویں آیت سے سنیں گے۔ اس وقت جب کہ یوحنا وہاں اپنے 2 شاگردوں کے کھڑا تھا، اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا، دیکھو خدا کا بندہ۔ اور ان 2 شاگردوں نے اس کی یہ بات سنی اور یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ یسوع نے مڑ کر انہیں پیچھے آتے دیکھا اور ان سے کہا کہ تم کیا ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا کہ ربی یعنی اے استاد، تو کہاں رہتا ہے؟ اس نے ان سے کہا کہ آؤ دیکھ لو گے۔ پس وہ آئے جہاں وہ رہتا تھا، دیکھا اور اس روز اس کے ساتھ رہے، اور یہ 10ویں گھنٹے کے قریب تھا۔ ان دونوں میں سے جو یوحنا کی یہ سن کر اس کے پیچھے ہو لیے تھے، ایک شمعون پطرس کا بھائی اندریاس تھا۔ اس نے اپنے ہمشیر شمعون سے مل کر کہا کہ ہم نے ماشے یعنی المسیح پا لیا ہے۔ تب وہ اسے یسوع کے پاس لایا، اور یسوع نے اس پر نگاہ کر کے کہا کہ تو شمعون بن یونا ہے، تو کیفا کہلائے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج خداوند اپنے خدا کے حضور ہم موجود ہیں تاکہ اس کے کلام کو جانیں، اور لطوری طور پر عام دنوں کے موسم میں ہم دخل پاتے ہیں اور ملبوسات کا رنگ جو ہے تبدیل ہوتا ہے، چاہے وہ کاہن کا لباس ہو چاہے الطار کے کپڑے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑی تبدیلی کے ساتھ ہم اس لطوریہ کا حصہ بننے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ آج کے کلام لطوریہ ہمارے سامنے بڑے احسن، موثر اور اچھے پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے۔ آج کے دن جب ہم کلام لطوریہ کو جانتے ہیں اور آج کے عنوان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پہلی تلاوت میں کیا ایک خوبصورت پیغام ہم سب کے لیے پایا جاتا ہے۔ ہم جو خداوند کے شاگرد ہیں، اس کے نام لیوا ہیں اور بپتسمہ حاصل کیا ہے ہم نے خداوند کے نام پر، ہر شخص کو خدا فردن فردن بلا رہا ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ بزرگ ہے، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے وہ بہن ہے، ہر شخص کو خدا بلا رہا ہے۔ یہ بلاہٹ، یہ آواز یاد رکھے ہمارے سماج سے آ کر ٹکراتی ہے، اسے ہم ہاں میں جواب دے یا نہ میں جواب دے یا اسے انسنا کر دے، خدا ہم سب کو بلا رہا ہے، اور یہ بلاوا ہر شخص کے لیے انفرادی طور پر ہے، اور ہر شخص کو خدا بلا رہا ہے۔ ہم یہ اپنی زندگی میں یہ نہ سمجھے کہ خدا نے چند مخصوص لوگوں کو بلایا، بلکہ ہم سب اس کے بلاوے میں شامل ہیں، اور جب خدا ہمیں بلاتا ہے تو اس کا خاص مقصد انفرادی طور پر ہر شخص کے لیے، یہ نہ سمجھے کہ صرف چند لوگوں کے لیے، بلکہ ہر شخص کو خدا
बुला रहा है। आज की पहली तिलावत में आपने किसका बुलावा सुना है? सैमुअल का। कलाम मुकद्दस को हम बगौर मुताले के साथ जब पढ़ते तो हमें पता चलता है कि खुदा ने मुख्तलिफ किस्म के अंबिया कराम को बुलाया। उसमें बड़े भी थे, छोटे भी थे, मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले लोग थे जिन्हें खुदा बुलाता रहा। और याद रखें, जिसका मौसर और जामे जवाब है खुदावन की आवाज के लिए, वो सैमुअल नबी है जिसे खुदा बुलाता है। और इस बुलावे में याद रखें, इसके पस मंजर में जाएं तो इससे पहले कि सैमुअल इस दुनिया में आता, उसकी मां जो है औलाद ना होने का दुख रखती है अपने साथ कि उसके पास औलाद नहीं। और जब वो खुदावन के हजूर जाकर सजदा रेज होकर आंसुओं के साथ घुटने टेक कर खुदावन के आगे दुआ कर रही है और दुआ में इस कदर मसरूर है कि अली काहिन, याद रखें, वो कहता है कि शायद ये ताजा मैं के नशे में, मगर वो कहती कि नहीं, मैं के नशे में नहीं, बल्कि खुदावन के हजूर सजदा रेज होकर अपने खुदा से दरख्वास्त कर रही हूं। और इसकी दरख्वास्त का अनुमान जो है औलाद है। और इस कदर दुआ में आगे बढ़ती है कि खुदावन उसे सब औलाद करता है, उसे औलाद की नेमत अता करता है। और बिलाखिर जब औलाद होती है तो उसे वो खुदावन के आगे हाजिर करती है, क्या खुदावन तूने मुझे औलाद दी, और वो खुदावन के आगे उसे हाजिर करती है। यह उसकी वफादारी है। और खुदावन सैमुअल को बहुत बरकत से नवाजता है। और जब वो खुदावन के हजूर अभी बच्चा ही है, खुदावन उसे पुकार रहा है। क्या आवाज आ रही है? सैमुअल, सैमुअल, सैमुअल। मैं सवाल करना चाहता हूं कि कभी आपके लिए भी ये आवाज आई है किसी शख्स के लिए, उसके नाम से खुदावन ने उसे पुकारा हो? याद रखें, हम सबको खुदा आवाज से पुकार रहा है और वो हमारे सामने कोई ना कोई मंजर रखता है, चाहे वो किसी काम की सूरत में हो, चाहे कोई खुदा असाइनमेंट दे दे, कोई काम उसे सुपुर्द कर दे और किसी जरिए से खुदा उसे बोल दे, कोई खुदा का बंदा वहां पर मौजूद हो जाए, मगर खुदा हर किसी को फर्दन फर्दन बुला रहा है और आवाज दे रहा है। उस बात को कभी कभी हम हाँ में जवाब देते हैं और कहते हैं कि देख खुदावन तेरा बंदा सुनता है, और बहुत दफा उसे छोड़ देते हैं अपनी जिंदगी से। याद रखें, खुदा हमें बुला रहा है, वो कभी भी हमें फरामोश नहीं करना चाहता। वो हमें जब बुलाता है तो मकसद भी साथ बताता है कि किस तरह हम उसके मकसद को पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं। आज की तिलावत जो मुक़द्दस पौलुस ने लिखा खत करंथियों के नाम है, खत के इक़्तिबास का अरूज हमारा करदार है, हमारी जिंदगी है और हमारा बदन है, जिसमें खुदावन याद रखे हमारी जिंदगी से जलाल चाह रहा है। ख्वार के साथ हम अक्सर ये गीत भी गाते हैं कि मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। और हमारे जीवन से, हमारी जिंदगी से, हमारे बदन से, हमारे उठने से, हमारे बैठने से, हमारे चलने से, हमारे काम करने के अंदाज से खुदावन का नाम जो है जलाल पाना चाहिए, क्योंकि ये जीवन, ये जिंदगी, क्या कहा गया कि तुम्हारा बदन रूह कुदुस का मकदस है। और इससे बढ़कर भी बात की कि तुम्हारा जिस्म जो है हैकल है। और याद रखें, जब खुदावन हमारी जिंदगी से, हमारे बदन से ये चाहता है कि हम रूह कुदुस की हैकल बने, तो हमारी जिंदगी याद रखें खुदावन के बहुत करीब होनी चाहिए। खुदा के बहुत करीब जब हम आ जाते हैं तो याद रखें, खुदा का कलाम हमें फरमाता है कि साफ साफ लिखा है तुम्हारा बदन रूह कुदुस की हैकल है। कितनी बड़ी बात! हैकल में खुदा से मुलाकात होती है, खुदा से बातचीत होती है, खुदा से मिलने का मकाम है, और जहां खुदा 24 घंटे मौजूद है उसे हैकल कहा जाता है। और हमारे जिस्म को, हमारे बदन को खुदा की हैकल कहा गया है, जिसमें खुदावन सकूनत पजीर है। क्योंकि खुदावन ने जब इंसान को तख्लीक किया तो इंसान मट्टी का पुतला, उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और इंसान जीती जान हो गया।
खुदा का रूह हम में साकन है, हम में रमा दमा है। ये सांसें, ये जिंदगी सब उसी के वसीले से है। ये खुदावन हम में मौजूद है और खुदावन की मुकम्मल तौर पर हजूरी हमारी जिंदगी में है। आज के दिन अंजील मुकद्दस का पैगाम भी हमारे लिए बहुत ही सबक आमोज है। और आज के दिन हम देखते हैं कि किस तरह एक ऐसा शागिर्द जो दूसरे एक बड़े शागिर्द को यीशु के पास लाने का सबब बनता है। उन दिनों में से जो यूहन्ना ने ये सुन करके उसके पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था। उसने अपने हमशीर शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमने माशिक पा लिया है। तब वो उसे यीशु के पास लाए। याद रखें, कभी कभी हमारा किरदार भी इंद्रियास की तरह हो जाता है और हम उस किरदार में पाए जाते हैं। इंद्रियास की खिदमत यह है कि उसने शमौन पतरस को यीशु तक लाने का सबब बनता है। हम अपनी जिंदगी को जांचें। आज एतवार का दिन था, किस किस ने कोशिश की कि अपने पड़ोसी के दरवाजे का दस्तक देकर हम कहें कि आए चले, चर्च का वक्त हो गया। याद रखें, हम अपनी शख्सी जिंदगी में महसूस करें कि हम इंद्रियास का किरदार अदा करते हैं। जब एतवार का दिन है तो हम दूसरे को लाने का सबब बने। हम खुद तो चल के आ रहे हैं मगर हम दूसरों को चर्च में लाने का सबब बने। और जब हम ऐसा करते हैं तो याद रखें, यीशु के शागिर्द इंद्रियास की मानद बनते हैं जो शमौन पतरस को यीशु के पास लाने का सबब बनता है। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी है कि हमने भी दूसरों को यीशु के पास लाना है और हम इस काम में चाहे कामयाब हो चाहे नाकाम हो मगर हमें कोशिश जारी रखनी है। और शमौन पतरस को इंद्रियास लाने का सबब बनता है तो उसका बड़ा किरदार है इस जिंदगी में कि वो शमौन पतरस को यीशु के पास लेकर आता है। इसी तरह याद रखें, हमें भी यीशु के शागिर्द बन जाना है। और जब यीशु के शागिर्द बनना है तो यीशु जैसी जिंदगी भी गुजारनी है। किस तरह हमसे मोहब्बत के लिए वो सलीब पर जो है कुर्बान हो जाता है, वो हलीमी और फरोख्ती से जिंदगी गुजारता है। और जब हम यीशु के शागिर्द बनते हैं तो याद रखें, उस जैसी जिंदगी भी गुजारने का फजल हमें मिलता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम यीशु को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और उसके सच्चे शागिर्द बनकर हमेशा उसके पीछे चलते रहें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से।